Science Academy Jammu, the way to excellence. Students, we are here now to discuss our next lecture, lecture number 2, complex number. This is Sajal Gupta this side, and now I am going to discuss some topics, some basic terms which we are left in our previous lecture, that is lecture number 1. And those who didn't watch that lecture, that previous lecture, can go through the YouTube link or on our YouTube playlist. They can easily view and go through the lecture number 1. And for lecture number 2, our first topic is multiplicative inverse of a complex number. So in previous class, we had studied what is a complex number. So basic review, complex number is z equal to x plus iota y. That is, complex number is denoted by z, and here x is your real part of z, complex number, and iota y is your imaginary part of a complex number z. Okay, so on moving forward, we are here today to discuss about multiplicative inverse. In our previous class, we had studied about z equal to x plus iota y. Now multiplicative inverse, z inverse is z raised to power 1 by z. Z inverse is equal to 1 by z, and what is this? This is 1 upon x plus iota y. 9th क्लास में हमने रैशनलाइज सीखा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो rationalizing the denominator. So this will become x minus iota y upon x minus iota y. Clear है ये step? In next step, it will become x minus iota y upon x square minus iota y का square. So this will become x minus iota y upon x square minus iota का square. हमने last class में पढ़ा था iota square is equal to -1. So this will become minus of y square. So this will become x minus iota y upon x square plus y square. So this is your method to calculate multiplicative inverse of a complex number. Next is example of multiplicative inverse. For calculating multiplicative inverse, you can go through z inverse 1 by z, 1 upon 3 minus 2 iota. Rationalize the denominator, 3 plus 2 iota, 3 plus 2 iota. This will become 3 plus 2 iota upon 3 square plus 2 का square. हम ऑलरेडी ये कंसेप्ट में हमने डिस्कस कर लिया है कि नीचे आपका हमेशा सम ही रहेगा. So 3 plus 2 iota, 3 square is 9 and 2 square is 4. So this will become 3 plus 2 iota by 13. तो इन्वर्स बनेगा 3 by 13 plus iota 2 by 13. क्लियर है यहाँ तक? Next topic is division of a complex number. Division of a complex number. Let z1 and z2 be two complex numbers. Then division of two complex numbers denoted by z1 upon z2 and is defined as z1 by z2. ले लीजिए, let it be a plus iota b upon c plus iota d, and this is equal to a plus iota b, c plus iota d, c minus iota d and c minus iota d. आप लिख सकते हो आगे where z2 आपका नॉन जीरो होना चाहिए. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, दिस विल बिकम AC minus BD plus iota
BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सो बेसिकली डिवीजन में आपने करना क्या है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन दी जाती है Z1 by Z2, तो आपको Z1 एज इट इज एंड 1 by Z2, एंड व्हाट इज 1 by Z2, दिस इज इक्वल टू Z2 का इनवर्स। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z equal to a plus iota b, v any complex number, then conjugate of complex number Z is denoted by Z bar and is defined as Z equal to a minus iota b. So basically, for conjugate of complex number, replace iota by माइनस आयोटा। ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए भी। आपको बस सपोज आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए z इक्वल टू 7 + 6 आयोटा, तो कंजुगेट आ जाएगा 7 - 6 आयोटा। इफ अगर आपको z दे दिया जाए 7 - 9 आयोटा, तो कंजुगेट में आप क्या करोगे 7 + 9 आयोटा। सो इसकी सेकंड डेफिनेशन कंजुगेट की आपके लिए, हालांकि 11th क्लास में ये इनफ है, बट फिर भी अगर आप देखोगे आपको एनसीईआरटी में एक रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट मिलेगा। तो बेसिकली जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में, या अगर हम अपने आर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां से कंजुगेट का एक कंसेप्ट निकल के आता है। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम की बात करूं, ये मेरी क्या आएगी एक्स एक्सिस, ये मेरी क्या है वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए, एक्स आपका क्या है रियल पार्ट, तो एक्स एक्सिस इज योर रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वाई एक्सिस जो है वो आपकी क्या बनेगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी सेम, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि दोनों प्लस, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स वाला नेगेटिव वाई वाला पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। अगर इसको थोड़ा आगे एडवांस लेवल पे अगर आप देखो, तो इसको बोला जाता है अपर हाफ प्लेन, एंड जो आपका इस एक्सिस के नीचे होगा इसको हम बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन। क्लियर है यहाँ तक? तो अपर हाफ प्लेन को H पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है एंड लोअर हाफ इज योर H नेगेटिव। एंड नेक्स्ट अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर करें, तो जो मैं आपको बात बता रहा था अब उस पर ध्यान दीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जब भी हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, लेट इट बी वो रियल एक्सिस पे इस पॉइंट पे है एंड इमेजिनरी एक्सिस पे वो इस पॉइंट पे है। तो इन दोनों का जो पॉइंट होगा, लेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बी पी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। अगर हम इसकी रियल एक्सिस की रिफ्लेक्शन लें, तो ये जो लोअर हाफ में अपर हाफ की जो इमेज बनेगी, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हियर कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड माइनस वाई। तो बेसिकली कंजुगेट होता क्या है, जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के आप रिप्रेजेंट करोगे, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी किसकी एक्स एक्सिस की, किस
कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो जो आपकी रिफ्लेक्शन के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, दिस इज नथिंग बट द कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है यहाँ तक? So students, next we are going to discuss properties of conjugate of a complex number. So number one is conjugate of a complex number is equal to complex number. That is, मैं क्या कह रहा हूँ, let it be z, आप ले लो x plus iota y। अगर आप इसका कंजुगेट लोगे क्या आएगा, x plus iota y का कंजुगेट, that is equal to x minus iota y. So z conjugate whole conjugate is x plus iota y. This is your complex number. So property number one is conjugate of a complex number is equal to complex number. So next is property number two. So property number two है z plus z conjugate is equal to real part of z. So क्या कहता है, z आपने लिया, z कंजुगेट आपने लिया, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y. दिस आयोटा y and आयोटा y are gone, so what we are left with, so this is twice real part of z, this is equal to 2 of x, so 2 of real part of z. Similarly z minus z conjugate is equal to twice imaginary part of complex number. Just subtract कर दीजिए, so this will become x plus iota y minus x minus iota y. So this will become x plus iota y minus x plus iota y. So this is equal to twice imaginary part of complex number. Clear है यहाँ तक? Next property number 4 is z into z conjugate is equal to modulus of a complex number. जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो what we are left with, x into x square minus iota xy minus iota square y square, this and this gone. Iota square is your minus 1, minus of minus 1 into y square. So this will become x square plus y square, and this is equal to under root of x square plus y square cos whole square. And what is this? This is your modulus of a complex number. So z into z conjugate is equal to square of modulus of a complex number. Clear है यहाँ तक? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट इक्वल है, दिस इंप्लाइज आपका जो z है वो क्या होगा, रियल। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट इक्वल है तो इसका मतलब आपका जो z है वो प्योरली रियल होगा। इसी तरह अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और नेगेटिव उसका इक्वल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ये आप डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कंजुगेट और कंजुगेट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा इक्वल होता है। ये चीज सब्ट्रैक्शन में भी वैलिड रहेगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, z1 z2 का होल कंजुगेट कैन बी रिटन एज z1 का कंजुगेट z2 का कंजुगेट, एंड z1 z2 का whole conjugate can be written as conjugate of complex number z1 and conjugate of complex number z2, provided आपका जो z2 है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो these are the properties of conjugate of a complex number. I hope you will enjoy the session, and our next definition is modulus of a complex number. A complex number, मॉडुलस को एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। मॉडुलस आर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में या किसी आर्गेन प्लेन में अगर आप रियल एक्सिस
को x एक्सिस ले लो, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, and y axis is your imaginary part of complex number. Let this complex number is x units from x axis and is y units from y axis. Then the point P making angle theta, this theta is your argument, making angle theta with the x-axis is called modulus of a complex number. Basically जो आपका complex number का modulus होगा, अगर ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये y होगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं modulus of a complex number क्या होता है. So लिखिए the modulus of a complex number, the modulus of a complex number z denoted by mod z and is defined as, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, mod of z equal to under root x square plus y square, that is equal to real part of complex number z का square plus imaginary part of complex number z का whole square. तो modulus of complex number is this. तो आप यहां से ये कह सकते हो, जैसे आपको पूछा जाए मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा. सो सिंपली मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 4 + 9 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 13. ओके, इसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ z equal to 7 - 6 iota. So mod z is equal to under root 7 square plus minus 6 का square, 49 plus 36. So this will become under root 85. सो स्टूडेंट्स, मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. जैसे मैं बात करूं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0, दिस इंप्लाइज वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा. सेकंड चीज, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कंजुगेट का मॉड हमेशा सेम होगा एंड उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव भी सेम होगा. आप प्रूव कर सकते हो. जैसे z ले लो, x प्लस आयोटा y, z कंजुगेट क्या आएगा, x माइनस आयोटा y, नेगेटिव ऑफ z माइनस x माइनस आयोटा y. जब आप इसका कंजुगेट लोगे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. जब आप इसका कंजुगेट लोगे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ y का स्क्वायर. एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x का स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ y का स्क्वायर. तो तीनों केसेस में ये चीज आपकी सेम रहेगी. इसी तरह से एक प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस ऑफ z1 z2 कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2. मॉडुलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2. नंबर 5, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z into z conjugate. So these are some important properties on which there are various questions will be asked in your exams, competitive as well as academic. So students, we are left with one topic, that is polar representation of a complex number. और CBSE बोर्ड में वो जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है, बट फिर भी हम लोग वो बहुत ही जल्द वो वीडियो भी लाएंगे. बट उससे पहले हमारी कोशिश रहेगी कुछ क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव में जैसे जेई हो गया या एनडीए हो गया, जिसमें वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यहाँ तक के जो टॉपिक्स आपने स्टडी किए हैं आप इनको आराम से कीजिए, फोकस रहिए. तो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द हम एक जेई की स्पेशल एंट्रेंस ओरिएंटेड क्लास लेंगे.
आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है. So this is all from my side in today's present lecture. I hope we will meet very soon in our next lecture. So students, thanks for watching.